Board's responsibilities. The board of directors have collective responsibilities as well as they have the individual responsibilities of each director जो है ना. Individual responsibilities are such like that each individual director should play his part effectively. ठीक है, he should take those decisions, ठीक है, which are in the interest of all the shareholders or rather all the stakeholders of the business organization. He should be vigilant, he should be diligent, he should be committed in the board decisions. But there are some collective responsibilities also, Jana. Collective responsibilities also that, for instance, individual director may also include representative directors. Representative directors are the one which are representing a special group of shareholders. For example, majority shareholders के कुछ appointed जो है ना वो directors हैं. अब वो जो अपॉइंटेड डायरेक्टर्स होंगे दे विल सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी शेयर होल्डर ओनली. जबकि कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि दे शुड नॉट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी शेयर होल्डर ओनली, रादर दे शुड सर्व द इंटरेस्ट ऑफ अदर शेयर होल्डर्स ऑल्सो एंड स्पेसिफिकली the minority shareholders and the other stakeholders who cannot protect their interests. अगर वो चैप्टर नंबर 1 रिकॉल करें तो उसमें हमने यही कहा था जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो तो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर होता है बेचारा उसके तो पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं. तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट के अंदर तो जो है कोई भी डायरेक्टर अपनी जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उसके जो है राइट्स को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी. बट कोलेक्टिव जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि इंस्टेड ऑफ representing a specific shareholder or protecting the rights or serving the rights of a particular shareholder, he or she must safeguard the interest of all the stakeholders. ठीक है जी. तो कुछ उनकी जो है ना, और सेकेंडली देयर पर्सनल इंटरेस्ट में नॉट प्रिवेल दी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट जो है ना उसमें जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो जरूर होने चाहिए बट इट शुड नॉट प्रिवेल दी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. वो जो ओवरऑल कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है उसके इंटरेस्ट को जो है ना प्रायोरिटी के ऊपर जो है ना वो रखना चाहिए. कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जी? एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. वही है जी कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग एनी पर्टिकुलर शेयर होल्डर या इंस्टेड ऑफ पुटिंग देयर सेल्फ इंटरेस्ट फर्स्ट दे शुड पुट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है, ऑन प्रायोरिटी. एंड नंबर 1 इज दे हैव द अकाउंटेबिलिटी टू द ओनर्स. Directors are not answerable to anyone else except the shareholders of the business organization or the owners of the business organization. तो ये किसी और को तो जवाबदेह नहीं है, but yet they are responsible and they are accountable to the owners of the business organization because shareholders are the one who have appointed these board of directors, and now these board of directors are basically accountable to those owners. They have certain statutory duties. For example, number 1, keeping minutes of all the meetings, whatsoever meetings that are being going on, they have to keep the record of all those meetings. Number 2, filing periodic reports and financial statements. Whatsoever the reports that are being prepared, that should be prepared, or that should be filed, and that should be submitted. Either these are financial statements or the periodic reports. For example, there is a report of director report to the shareholders that is mentioned in the annual report that basically shows the different highlights of the company. So directors, what they should do is they should present that report to the shareholders. Likewise, along with the annual report, there are quarterly reports that are also being issued. तो उन क्वार्टरली रिपोर्ट्स में भी जो फाइनेंशियल हाइलाइट्स होती हैं या डायरेक्टर रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर होती है वो मेंशन होती है. तो डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स हैं उसको क्या करें, वो प्रिपेयर करें और उसको डिसमिनेट करें जो है उसमें. देन स्टॉक एक्सचेंज अपडेट्स, जो चीज़ें आती जा रही हैं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली जो चेंजेस आती जा रही हैं, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू टेक नोटिस ऑफ दोज थिंग्स एंड इनकॉर्पोरेट देम, ठीक है, इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जैसे अभी हम लोग स्टार्ट में लेक्चर के डिस्कस कर रहे थे कि प्रीवियसली द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैड दिस रिक्वायरमेंट दैट देयर शुड बी प्रेफरेबली वन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. Then they increase this requirement to 1/3 of the non-executive director. So whatsoever that is being changing in the stock market, whatsoever that is being disseminated by the regulators, that has to be taken into consideration. And then the fiduciary or trustship duties, okay, they are basically being taken on board to act as a trustee for the shareholders of the business organization. जो हम लोगों ने बात की थी कि managers and shareholders can have conflict of interest. There is principal agent problem. So in order to safeguard the interests of the shareholders, the watchdogs are basically appointed. So there is
trusteeship in them कि they are safeguarding the interests of all the stakeholders of the business organization, और उस trustship को उसने क्या करना है, ensure करना है. Test of fiduciary duties क्या है? Transactions are reasonably incidental to the company's business, कि जो भी transactions कर रहे हैं वो business के साथ जो है ना वो related हैं, जो है ना वो fair हैं. Good faith believing the transactions to be correct, जो भी उसके अंदर जो transactions हो रही हैं वो ठीक हो रही हैं, means उसके अंदर कोई embezzlement नहीं है, उसमें कोई fraudulent activities नहीं हो रही, कोई unethical activities नहीं हो रही, एंड द डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर कहीं कोई मसला मसाइल आता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को भी जो है ना वो क्या किया जाए, वहां डिस्क्लोज करें. अब यहाँ देखें, एक सिचुएशन आती है जिसको हम बेसिकली जब बात कर रहे होते हैं तो वो है इनसाइडर जो है ना ट्रेडिंग. क्या होती है इनसाइडर ट्रेडिंग? जी, any idea what is Sir, within an organization buying and selling. within organization buying and selling, for example? सर SCCP में जो इन्वेस्ट करते हैं. Sir, can I add something, sir? जी please. So doing business while living inside the company, like purchasing the company's products at company price and selling it in the market on exorbitant rates, and not sharing the profit with the company, and vice versa, buying the raw material at low price and selling it to your own company at exorbitant price, and achieve all the profits, making into your own kitty and not sharing it with the company. Okay, very right. So is it unethical, or it is illegal, or it is a criminal offense? So this is unethical. Basically, this is unethical. However, in our country, I think it is ethical and legal also. Achha, in your company, Sir, it is unethical. basically, Sir, it is unethical as well as illegal. it is basically the concept is that based on. जी please बोलें. जी सर, मैं ये कह रहा था कि लेट सपोज जैसे भाई ने बात की कि अगर मतलब लाइक वो कंपनी से कोई प्रोडक्ट लेता है और मार्केट में सेल करता है प्रॉफिट के लिए, मतलब लाइक ज्यादा कॉस्ट के लिए, तो सर फिर तो उससे कोई परचेज नहीं करेगा, क्योंकि मतलब लाइक उसकी मार्केट प्राइस तो कुछ और है और वो कुछ और सेल कर रहा है, तो सर हाउ कैन ही सेल द प्रोडक्ट? अच्छा, ठीक है, ये एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात है. बेसिकली जो इनसाइडर ट्रेडिंग है वो ये है कि by virtue of your position you have some information, and based on that information you are doing an activity for the profit taking. That is a kind of insider trading. For example, you are a member of the board of directors, ठीक है, या you are the director finance of the company. तो obviously बात है, being a director finance, you have prepared the financial statements, or you are taking care of the financial statements of the business organization, and you have this information available that how much of the profit has been earned by the business organization. अभी financial statements जो हैं उनको audit नहीं हुआ, या उनको आपने क्या किया, disclose नहीं किया हुआ, but you have this inside information available कि इस साल की profit और loss की situation क्या है, and you were aware that this year the company earned huge profits, and because of those huge profits board of directors, ठीक है, will approve this decision that this year the company will pay a higher dividend as compared to the previous years. So based on this information, obviously that the company is more profitable, the company would be going to pay higher dividends, so share prices would increase. तो आपको इस इंफॉर्मेशन के होते हुए, which information is not publicly available, which is not available to other shareholders or stakeholders, आपने क्या किया, कंपनी के शेयर्स बाय कर लिए. ठीक है, ये जो आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, कंपनी के शेयर्स की बाइंग कर रहे हैं, by virtue of the information that you are having, by virtue of your position which is not publicly available, this is known as insider trading, and this is considered as a criminal offense. It is an illegal activity, it is not unethical, rather it is illegal. Illegal इस वजह से है क्योंकि you are not supposed to do this activity because other people do not have the information. You had that information available, you should kept it secret because this was not supposed to be publicly disclosed unless or until financial statements are disclosed to the shareholders.
लेकिन दूसरे लोगों को क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उनके इन्फॉर्मेशन ना होने के ऊपर आपने क्या किया, मार्केट से बेनिफिट लिया कि लो प्राइस पे शेयर्स को एक्वायर कर लिया, और जब शेयर प्राइस हाई होगी तो उनको सेल करके आप ह्यूज प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज इनसाइडर ट्रेडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी जो है ना वो पब्लिक ऑफिस में, जैसे ये बहुत सारे लोग अभी रिसेंटली शुगर प्राइसेस वगैरह इंक्रीज हुई, तो अब वो जो शुगर माफिया कहा जाता है, या ये जो ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही होती हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरनली इस इंफॉर्मेशन को जो है ना ओगरा के अंदर हैं या ऑयल कंपनीज के अंदर हैं, ठीक है। तो दे हैव दिस इंफॉर्मेशन कि ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगी हैं, तो ऑयल प्राइसेस बढ़ने से पहले उन्होंने क्या किया, ऑयल का स्टॉक जो है ना वो अपने पास मेंटेन कर लिया। तो जब ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, उस स्टॉक को हायर प्राइसेस पे सेल करके जो है ना वो बेनिफिट जो है ना वो एक्वायर करेंगे। तो दिस इज अ काइंड ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है जी। इट इज कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, इट इज इलीगल एक्टिविटी। तो अब इस किस्म की जो सिचुएशन है, ठीक है, दैट सिचुएशन, ठीक है, दैट इज सपोज दैट गुड फेथ दैट बिलीविंग ट्रांजैक्शंस टू बी करेक्ट, कि आप किसी भी इस किस्म की जो है ना मैल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। बीइंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, आप पे ट्रस्ट किया जाता है, आप पे फेथ होता है शेयर होल्डर का, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है जो बिजनेस से रिलेटेड, उसका मिस यूज नहीं करेंगे। इसी तरह एक और टर्म यूज की जाती है मार्केट अब्यूज की। मार्केट अब्यूज क्या चीज होती है? जखीरा अंदाजी सर। Sir, नहीं, by market abuse, might be you're referring to a terminology that the things are sold at exorbitant price by exploiting their market, whereas their demand is not that high the way it has been portrayed. सर कोई गलत अफवाह फैलाना मार्केट में सर। जी बिल्कुल ठीक है जो ना, उसमें मार्केट अब्यूज इज के यू गिव अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन टू द मार्केट। आप फाइनेंस मैनेजर हैं, आपसे कोई ये पूछता है कि भाई ये बताओ इस साल डिविडेंड दे रहे हो या नहीं दे रहे जो है ना उसमें, तो आप कहते हैं हाँ दे रहे हैं, एक्चुअली आप नहीं दे रहे होते। उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर मार्केट एक्टिविटी जनरेट होती है, बहुत सारे लोग क्या करने शुरू कर देते हैं, शेयर्स परचेज करना शुरू कर देते हैं। इट इज अनएथिकल, ऐसा करना नहीं चाहिए आपको जो है ना उसमें, ठीक है, बट दिस इज नॉट इलीगल जो है ना। आपने तो एक स्पेकुलेशन क्रिएट की ना, आपने तो इंफॉर्मेशन दे दी, उस इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करना उन लोगों का काम था जो कि उसकी क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि मार्केट में जो स्पेकुलेशन क्रिएट होती है कि प्राइसेस बढ़ने लगी हैं, प्राइसेस कम होने लगी हैं, कोई सोसाइटी लॉन्च होने लगी है तो ये बहुत प्रॉफिटेबल है, इसमें इन्वेस्ट कर दो। फाइल्स की प्राइसेस भी दिनों में जो है ना वो लाखों प्रॉफिट जो है ना वो देंगी। सर ये अनएथिकल तो है सर, लेकिन एक्चुअली आई थिंक सारी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व होती होंगी। बिल्कुल होती हैं जो है ना। सर मार्केट अब्यूज में जो इन्वेस्टर्स और जो ट्रेडर्स होते हैं वो अनफेयर एडवांटेज जो है वो गेन कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जो है ना, लेकिन उसी में जो ना वो लॉस भी करते हैं ना। तो इसी स्पेकुलेशन की बेस के ऊपर सम टाइम दे गेट द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, सम टाइम इसी के बेसिस के ऊपर वो लॉस में भी जो है ना वो चले जाते हैं जो है ना उसमें। तो वही मैंने आपको बताया ना Yes, कि sir. लेट्स सपोज कोई एक नया जो है ना सोसाइटी ओपन होने लगी है, या उसी एग्जिस्टिंग सोसाइटी का कोई नया फेज स्टार्ट होने लगा है, तो एक मार्केट में एक वाइब क्रिएट होती है कि जी कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, बहुत ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, फौरन जो है ना प्राइसेस बढ़ेंगी, 6 महीने के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो डबल हो जाएगी। अब इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसका बैक एंड सोर्स क्या है, उसको किसने जो है ना वो ये इन्फॉर्मेशन दी है, सम टाइम वो कंफर्म ही नहीं होता, वो सब स्पेकुलेशंस होती हैं। लेकिन उसी स्पेकुलेशन की बेस के ऊपर बहुत सारे लोग प्रॉफिट भी अर्न करते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना वो लॉस भी जो है ना वो कर जाते हैं। तो दिस मार्केट अब्यूज कीप्स ऑन गोइंग जो है ना, जितना मार्केट स्पेकुलेटिव होगी, जितना इस किस्म की रूमर्स को जो है ना वो एक्सेप्ट करते हैं, उसकी बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, इतना ही मार्केट अब्यूज जो है ना वो कॉमन होगा। और अगर जो है वो स्पेकुलेशंस कम है मार्केट के अंदर, रियल टाइम जो है ना वो चीजों के ऊपर चलते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इस किस्म की रूमर्स मार्केट में होते भी है, लोग इतना ज्यादा जो है ना उसको अंडर कंसिडरेशन लेके आएंगे। ठीक है जी। तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी फेथफुल। सर ठीक है जी 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 प्लीज। सर जैसे एक कोई प्रॉपर्टी डीलर है, जी वो उठता है एक सोसाइटी, इधर उधर लोगों में मतलब बात फैलती है यार कि वो कह रहे हैं हम हॉस्पिटल भी देंगे, स्कूल भी देंगे, बहुत सी फैसिलिटीज देंगे, प्लॉट उनके बिकना शुरू हो जाते हैं। बाद में वो उसका जितना कुछ होता है वो सारा गलत साबित होता है। तो क्या एक तो है ये मार्केट अब्यूज है, तो क्या वो लीगली मतलब बाउंड होता है कि उसको पकड़ा जा सके?
आज तक आपने ऐसा सुना है कि ऐसी बात के ऊपर किसी को जो है ना वो जेल होगी हो, फांसी होगी हो, कि वो कह रहे थे नहीं यार ना होती सर, नहीं होती। वो इसी वजह से ना, वो इसी वजह से कि वो कहते हैं जी, ये जरूर है मार्केटिंग के टर्म यूज की जाती है, लेट द बायर बी अवेयर, ठीक है। लेकिन दूसरी जी सर। साइड के ऊपर देखे ना, वो हदीस शरीफ का भी मफहूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स के लिए किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को जो है ना वो आगे लोगों तक जो है ना वो पहुंचाए। तो अगर फॉर इंस्टेंस हम किसी की सुनी सुनाई बात के ऊपर रद्द अमल कर रहे हैं जो है ना उसमें, तो लॉ की नजर में तो जो है ना वो भी गलत था और हम भी गलत हैं, कि हमने भी तो उस चीज को वेरीफाई नहीं किया ना, हमने भी तो ऑथेंटिकेट नहीं किया जो है ना उस चीज को। अब आप कहते हैं कि सर बिल्कुल सर। इसमें तो देखें ना ऑथेंटिसिटी तो यही है कि उसने बताया था, तो चलें, अगर उसने बताया था उसकी रीवेरिफिकेशन तो हो सकती थी ना, कि आप उसकी रीवेरिफिकेशन में ये कर सकते थे कि जिस सोसाइटी के अंदर वो आपको बता रहा है कि ये प्रिविलेजेस दिए जाएंगे, उसका कोई अप्रूव जो है ना, जिस भी सीडीए से हुआ है या आरडीए से उसकी अप्रूवल हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका एक प्लान जो है ना अप्रूव हुआ होगा कि इसके अंदर, इस बिल्कुल सोसाइटी के सर। अंदर ये जो है ना, इन्होंने जो है ना एंटरटेनमेंट के लिए चीजें जो है ना वो देनी है, पार्क्स होंगे, रोड्स इतनी होंगी, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप जो है ना उससे जो है ना वेरीफाई कर सकते थे। तो अगर आपने वेरीफाई किए बगैर, फॉर एग्जांपल बहुत से लोग ये कहते हैं जी सीडीए अप्रूव्ड जो है ना सोसाइटी है, बाद में पता लगता है जी कि सीडीए की तो अप्रूवल थी नहीं। तो आपके पास ये ऑप्शन तो एग्जिस्ट करता था ना कि उसको रीवेरीफाई कर सकते थे दूसरे लोगों से, दूसरी सोसाइटी से, इवन सीडीए से जाके वो कंफर्म कर सकते थे। तो इफ यू आर नॉट evaluating that information and based on that speculation you are making an investment, then obviously it's your perspective and you are responsible for it, कि आपने गलत बंदे की बात सुन के उसके ऊपर वो किया है, तो उसके ऊपर कोई लीगल बिल्कुल सर। ऑफेंस नहीं हो सकता। इसलिए मार्केट अनएथिकल, ज्यादा क्या करेंगे, अगले दफा आप उस पर एतबार नहीं करेंगे और लोगों को भी बता देंगे कि यार ये झूठा है, इसके ऊपर एतबार नहीं करना, लेकिन कोई उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं हो सकता। बट इन केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, अगर ये प्रूव हो जाता है कि मैनेजर जो था कंपनी का वो इन्वॉल्व है इस किस्म की एक्टिविटीज में जिसकी वजह से उसने पर्सनल बेनिफिट को गेन किया है, हैविंग दैट इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, तो उसके अगेंस्ट बिल्कुल लीगल एक्शन होगा जो है ना उसमें। ठीक है, जी सर। okay ji, then there are different types of the boards based on the composition. The boards are divided into two boards, unitary board and two tiered board जो है ना उसमें, ठीक है। And based on tenure again they are divided into two boards, one is common tenure board, the other one is the staggered board. Any idea that what is unitary board and what is two tiered board? सर जो यूनिटरी मेथड होता है इसमें हम जो वैल्यू होती है यूनिट की उसको हमने फाइंड आउट करना होता है नहीं वैल्यू ऑफ this is रिक्वायरमेंट से no ऐसे ही सर ये तो उन्होंने वैसे मीनिंग बता दिया ना, यूनिटरी बोर्ड का आई थिंक इट्स अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दैट इज कंपोज्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जैसे आपने शुरू में बताया था कि एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं। नहीं तो थोड़ा सा यूनिटरी different है। सर इसमें सर सर इसमें ये होता है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं ना बोर्ड के, उनको सर उनका इक्वल सर स्टेटस होता है, मतलब वो अपने कोई भी वोट देना चाहें या कोई बात करना चाहे तो उनका सर इक्वली उनको ट्रीट किया जाता है। अच्छा, तो और टू टीयर्ड में क्या होगा? सर मैं बताऊं, जी बताएं जरूर। सर ये जो आपका यूनिटरी बोर्ड होता है उसमें डायरेक्टर को सिर्फ एक ही काम करना होता है कि उन्हें डिसीजन लेने होते हैं स्ट्रेटेजिक। ठीक है, जो आपका टू टीयर बोर्ड होता है उसमें स्ट्रेटेजिक डिसीजन तो उन्हें लेने भी होते हैं, मैनेजमेंट भी होती है, प्लस उसमें उनके साथ सुपरवाइजर भी होते हैं। ठीक है, बिल्कुल जो है ना उसमें बेसिकली देखें, यूनिटरी का मतलब है सिंगल, टू टीयर का मतलब है इट इज डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स। तो यूनिटरी बोर्ड इज द वन इन विच देयर इज ओनली वन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि क्या कर रहे हैं, सुपरवाइजरी रोल जो है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं जो है ना उसमें। ठीक है, जो हम लोगों ने कहा था, अनफॉर्चुनेटली ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे नहीं स्टार्ट हो रहा, शुड हैव रिटन इट डाउन, some problem in this जो है ना, ये टेक्स्ट बॉक्स जो है ना वो नहीं है पॉसिबल। अच्छा, जो आपका यूनिटरी बोर्ड है, नहीं, unitary board is basically a single board, means all the board of directors enjoy the equal status, they would be performing the supervisory function as board of directors। तो जो हम लोगों ने इनिशियली बात की थी कि there are shareholders hierarchy में, then there are board of directors
और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद क्या होंगे, मैनेजमेंट होंगे। तो अब मैनेजमेंट को जो है ना लुक आफ्टर कर रहा है बोर्ड, उनको गाइड कर रहा है, उनको सुपरवाइज कर रहा है। दिस इज बेसिकली सुपरवाइजरी बोर्ड। जो टू टीयर्ड बोर्ड है, टू टीयर्ड बोर्ड का मतलब है इस बोर्ड को आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जो है ना उसमें, ठीक है। वन इज लुकिंग आफ्टर द ऑपरेशनल अफेयर्स, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उन चीजों को कर रहे हैं, और द सेकंड वन इज द सुपरवाइजरी बोर्ड। फॉर एग्जांपल, आपका जो एक सिंगल बोर्ड था जिसके अंदर आपके एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे, आपने उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया दो में। अब एक बोर्ड के अंदर क्या है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि मैनेजमेंट का ही पार्ट है, वो मैनेजरियल अफेयर्स जो है ना वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो अब आपकी हायरार्की क्या बन गई, शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स के बाद आपके जो है ना आपके नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं जो कि सुपरवाइजरी बोर्ड का हिस्सा होंगे। उसके नीचे आपका क्या है, ऑपरेशनल बोर्ड है जो कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे कंप्राइज करता है, और उसके बाद क्या होगी, मैनेजमेंट होगी। तो वही जो सिंगल बोर्ड था जिसमें एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों डायरेक्टर्स थे, उसको आपने क्या किया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और एक में जो है ना वो आपके सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आ गए जो कि आपके जो है ना वो फंक्शनल या ऑपरेशनल बोर्ड होगा, और दूसरे में आपके नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आ गए जो सुपरवाइजरी फंक्शन को जो है ना वो प्ले कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज ओनली वन बोर्ड व्हिच कंप्राइजेस ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एग्जीक्यूटिव बोर्ड, unitary board. And if the board is divided into two parts, one comprising of executive directors that would be taking care of the operational affairs, and the other which comprise of non-executive directors or independent non-executive directors, so that would be taking care of the supervisory role. In that situation, the board would be considered as two-tiered. Is this thing clear, ji? Yes, sir. Okay. I'm sorry I couldn't write it here. जो है ना कोई Yes, sir. प्रॉब्लम आया है, टेक्स्ट बॉक्स जो है ना वो क्लियर नहीं हो रहा। तो यूनिटरी मींस देयर इज अ सिंगल बोर्ड जिसमें एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों है। टू टीयर्ड मींस इट कंप्राइज ऑफ टू लेयर्स ऑफ द बोर्ड, वन कंप्राइजिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ठीक है, which टेक केयर ऑफ द ऑपरेशनल डिसीजंस, and the other one would be comprising of the non-executive directors or independent non-executive director which would act as a supervisory board. Then on the basis of tenure, there is a common tenure board and staggered board. Any idea about this thing? Common tenure board क्या होगा? सर नाम से तो ऐसे लग रहा है कि कॉमन टेन्योर वो होगा जितने भी बोर्ड के मेंबरान होंगे सबका टेन्योर एक जैसा होगा, सबके 2 साल, सबके 3 साल। और स्टैगर्ड वो होगा जिसमें सबका जो पीरियड होगा, टेन्योर होगा, वो एक जैसा नहीं होगा, कुछ का ज्यादा होगा, कुछ का कम होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने जो है ना उसको गेस किया है। कॉमन टेन्योर बोर्ड का मतलब ये है कि उनकी जो अपॉइंटमेंट है और उनकी रिटायरमेंट है वो सेम होगी, मतलब एक ही टाइम पे सारा बोर्ड अपॉइंट होगा और डाइल्यूट भी होगा या रिटायर होगा तो एक ही टाइम पे। फॉर एग्जांपल, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर 9 लोग हैं तो आपने 1 जनवरी 2020 पे उनको ऑन बोर्ड किया, तो 2020, 2021 और 2022, तो 31 दिसंबर 2022 के ऊपर सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिटायर हो जाएंगे। उनका दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, री इलेक्शन करना पड़ेगा, जैसे हमारा पार्लियामेंट का अंदर होता है। तो 5 इयर्स क्या होता है, 5 इयर्स के बाद जो है ना सारे के सारे बंदे दोबारा से जो है ना री अपॉइंट होंगे, जो है ना कोई MNA है, कोई MB है, जो है ना उस तरह से। और अगर उससे पहले भी हो जाता है तो अगर जो गवर्नमेंट है वो टॉपल डाउन हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो सारे के सारों का इलेक्शन जो है ना वो दोबारा होगा। स्टैगर्ड के अंदर क्या है, जैसे सेनेट के अंदर आप चलते हैं जो है ना उसमें कि सारे के सारे मेंबर्स एट द सेम टाइम जो है ना रिटायर नहीं होते, बल्कि उसमें से कुछ जो है ना कैरी फॉरवर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे भी हमने कहा कि देयर 9 पीपल ऑन द बोर्ड, तो 1 जनवरी 2020 पे आपने क्या किया, 3 लोगों को जो है वो ऑन बोर्ड किया 3 साल के लिए। तो इसका मतलब यह है कि टोटल 9 में से 3 लोग रीअपॉइंट हुए। अब जब 1 साल गुजरेगा तो अगले 3 जो है ना वो रिटायर हुए, उनकी जगह अपॉइंट कर लिया। उसके बाद अगले साल में अगले 3 लोग रिटायर हुए, उनकी जगह रीअपॉइंट कर दिया। तो अब हो क्या रहा है, हर साल 3 लोग रिटायर हो रहे हैं और 3 लोग जो है ना वो दोबारा से री इलेक्ट हो रहे हैं या रीअपॉइंट हो रहे हैं जो है ना एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इस सिचुएशन के अंदर जो बोर्ड होगा दैट वुड बी कंसीडर्ड एज अ स्टैगर्ड बोर्ड जो है ना। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। अगर बोर्ड एक ही टाइम पे अपॉइंट या रिटायर हो रहा है तो उसका प्रॉब्लम ये है कि सारे जब बोर्ड मेंबर्स चेंज हो जाएंगे तो बोर्ड पॉलिसीज जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए इम्प्लीमेंटेबल नहीं होंगी। जैसे देखते हैं आप कि गवर्नमेंट जब चेंज होती है तो जो पिछली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो सारी जो है ना वो जो है ना वो रुक जाती हैं या वो लाइमलाइट से हट जाती हैं। उसकी वजह ये है कि जो नई गवर्नमेंट होती है उसकी शायद प्रायोरिटीज जो है ना वो डिफरेंट हो।
लेकिन अगर उसी के कुछ मेंबर्स कंटिन्यू करते और कुछ और ऐड हो जाते तो पिछले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी तरह से टेकअप होते रहते, मजीद जो है ना नए जो है ना वो ज्वाइन इन करते रहते। तो इसलिए जो है वो जनरली ये प्रेफर किया जाता है कि द बोर्ड शुड बी स्टैगर्ड, एक ही टाइम के ऊपर सारे के सारे बोर्ड मेंबर्स जो है ना वो अपॉइंट या रिटायर ना हो, बल्कि वो डिफरेंट टेन्योर्स के अंदर, डिफरेंट फेजेस के अंदर अपॉइंट हो या डिफरेंट फेजेस में जो है ना वो रिटायर। जी, एनी क्वेश्चन ऑन दिस जो है ना वो टाइप्स ऑफ द बोर्ड्स का ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन या टेन्योर? नो सर। ठीक है, नो सर, क्लियर। ओके जी। देन मूविंग फॉरवर्ड, देन there is a very important concept that is regarding the balance on the board. Balance on the board का क्या मतलब है? सर यानी कि उनकी जो ड्यूटीज होंगी, पावर जैसे नजर आ रहा है, उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनमें इक्वल बैलेंस होना चाहिए, किसी किस्म की जैसे होते हैं ना इम्तियाज रवैया वैसा ना हो। ठीक है, बैलेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होगा? सर इसमें बैलेंस, सर इसमें बैलेंस में होगा सबके साथ लेके चलने वाला। मार्केटिंग क्या कहते हैं फाइनेंस के। सर हर एरिया का एक्सपर्ट जो है वहाँ पे प्रेजेंट हो। ठीक है, ऐसा भी है कि फॉर एग्जांपल सारे के सारे लोग फाइनेंस के या मार्केटिंग या एचआर के ना हो जाएं, बल्कि उसमें कोई एचआर का बंदा भी होना चाहिए, मार्केटिंग का भी, प्रोडक्शन का भी जो है ना होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आपको लीगल एडवाइस भी चाहिए तो कोई ना कोई लीगल एक्सपर्ट भी तो होना चाहिए ना। आपने सारे लोग वो रख लिए जो कि नॉर्मल रूटीन के थे, लीगल एडवाइजर ही कोई नहीं है, तो लीगल एडवाइस किससे लेंगे? तो इसका मतलब है लीगल एक्सपर्ट भी बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर सारे ही वकील जो है ना वो रख लेंगे तो बाकी बिजनेस कैसे चलेगा? तो बैलेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इसी तरीके से ये है कि आपके जो है ना बैलेंस ऑफ टैलेंट्स या एबिलिटीज हो। ये क्या मतलब है? बिजनेस का जो काम होगा सर उसके मतलब सर मुताबिक सर वो होना चाहिए, ठीक है जिसके जो, रिलेटेड वो काम होगा। ठीक है, बैलेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन में ये भी हो सकता है कि सब शेयर होल्डर्स की रिप्रेजेंटेशन हो, कि फॉर इंस्टेंस ये नहीं है कि सिर्फ आपके मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स की जो है ना अपॉइंटेड जा रहे डायरेक्टर्स हैं, बाकी किसी की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। बैलेंस ऑफ टैलेंट्स या एबिलिटीज के अंदर ये है कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स के लोग हों, जो अब अभी बात कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल उसके अंदर मार्केटिंग या फाइनेंस के लोग भी हों, उसके अंदर एचआर के भी हों, उसके अंदर प्रोडक्शन के भी जो है ना मैनेजर जो है ना वो भी इन्वॉल्व हो। इसी तरीके से अगर कोई लीगल एडवाइजर या लीगल एक्सपर्ट है तो वो भी उसके अंदर जो है ना वो शामिल हो। तो सारे के सारे एक तरह के नहीं होने चाहिए, बल्कि डिफरेंट लोग होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बात कर रहे थे कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिफरेंट जो है ना वो होल्डिंग कंपनी है और उसके नीचे जो है ना एक बैंक भी उन्होंने जो है ना एक्वायर किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल फौजी फाउंडेशन ग्रुप है, तो फौजी फाउंडेशन के अंदर फौजी फर्टिलाइजर भी है, फौजी सीमेंट भी है, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम भी है, फौजी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी भी आ जाती है, फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल भी है, फौजी फाउंडेशन स्कूल्स भी आ जाते हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने क्या किया, अस्करी बैंक को भी एक्वायर किया हुआ है। अब बाकी सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग है या एजुकेशनल जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशंस है, लेकिन एक फाइनेंशियल सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन भी ली हुई है। अब जो मेन जो फौजी फाउंडेशन जो ग्रुप है उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी बीच में होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रेगुलेशंस को जो है ना लुक आफ्टर कर सके जो है ना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। बैलेंस ऑफ पावर, इसका क्या मतलब है? सर इक्वल पावर होनी चाहिए तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। सर मींस कि जैसे इक्वल आपने कहा कैसे कि होगी? प्रोडक्शन और इसका बंदा मार्केटिंग सर का वोटिंग राइट जो है वो इक्वल होनी चाहिए, हर एक के पास जो है वो एक ही वोटिंग राइट हो। तो उससे इक्वल कैसे होगा जो है ना? सर जो डिसीजन लेने की पावर है वो जो है वो इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक के पास सारी पावर्स हैं और बाकी जो है वो पावरलेस हों। सर मींस कि उनकी बात सुनी जाए उस सेंस में। सर बैलेंस ऑफ पावर में भी है, जैसे आपका एनरॉन का केस था कि हमारे जो पॉलिटिशियन असद उमर साहब थे, उनके अपने अब्बा जी ही वहाँ के डायरेक्टर थे जिन्होंने उनको अपॉइंट किया था, और आगे 49 फिर समथिंग उनकी सैलरी थी। नहीं, वो कोई पर्सनल कमेंट नहीं जो है ना उसमें, किसी भी जो है ना पर्सनली कोर्ट उसको नहीं करेंगे। नहीं सर, जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स वाला पूरा आया था इसके अंदर, ये तो काफी भी चला आपका। नहीं, वो ठीक है, अच्छी बात है जो है ना उसमें बैलेंस ऑफ पावर। वो पावर कहीं है ना कि अब जैसे बैलेंस ऑफ पावर नहीं रही, जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर था उसने अपना मैनेजर अपॉइंट किया और अपने मैनेजर की उसने उसके मुताबिक सैलरी अपॉइंट की। अगर पावर का बैलेंस आएगा तो सारे जो भी शेयर होल्डर हैं वो
वो क्या नाम है, जो डिवीजन ऑफ पावर या इक्विटी है ना, शेयरिंग वैल्यू, जी जी वो सेम हो रहेगी फिर, नहीं उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। उसमें तो देखें वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि इक्वली जो है ना वो शेयर होल्ड कर रहे हो लोग जो है ना वो कंपनीज में, वो तो हमेशा एक इम्बैलेंस होगा। कुछ लोग किसी भी Imbalance कंपनी में होगा। ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, कुछ लोग जो है ना वो कम करेंगे, तो कोई ऐसा तरीकाकार हो नहीं सकता कि इक्वली जो है ना इन्वेस्टमेंट हो। दूसरा उसमें होता है कम्युलेटिव वोटिंग राइट्स का। कम्युलेटिव वोटिंग राइट का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो है, या आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के अंदर भी डिटेल के अंदर जो है ना वो डिस्कस करेंगे कि जनरली वो जो हम कहते हैं ना 1 वोट फॉर 1 शेयर, तो उसमें यह है कि अगर आपने 10 जो है ना वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, तो इसका मतलब है अगर आपके पास एक शेयर है तो एक शेयर का मतलब यह है कि आपके पास 10 वोटिंग राइट्स होंगे। कम्युलेटिव वोटिंग राइट्स का मतलब यह है कि जितने भी कैंडिडेट्स होंगे आपके नंबर ऑफ शेयर्स उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मींस अगर एक बंदे के पास 10,000 शेयर्स से और 10 सीट्स हैं, तो इसका मतलब है उसके पास 1 लाख जो है ना वोटिंग राइट्स हैं। अब वो 1 लाख वोट्स किसी एक बंदे को भी दे सकता है और 1 लाख जो है ना इक्वली 10 के अंदर डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर सब में डिवाइड करेगा तो उसमें तो प्रॉब्लम ये है कि जो भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर है सारे के सारे बंदे उसी के ही आ जाएंगे। ठीक है, वो तो कभी भी जो है ना वो अपने नहीं कर सकता जो है ना कोई बंदा नॉमिनेट। हाँ, ये ऐसा कर सकता है कि वो क्या करे कि एक बंदे को सारे के सारे वोट दे दे जो है ना उसमें,